आसा आनी एन्जॉय करा गेम. आता फायनल चालू आसा. एकान एक रन जे आमी बरयतले हांगा ते इम्पॉर्टंट. एकान एक गोष्ट जी सांगतली मायकाचेर ती इम्पॉर्टंट आसा. आनी फाल्यां कितें चुकलें जाल्यार आमकां हांगा तुमी धारेर धरतले. त्या खातीर विनंती करता की मातसो ह्या जाग्यार मुवमेंट करनाका. अंपायराचें डिसिजन कितें आसा तें कळुनी. इम्पॉर्टंट फायनल ऑफ आमदार चषक ऑर्गनायज्ड बाय सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स. अंपायर्स आर रेडी, द प्लेयर्स आर रेडी, द batters are ready, the scorer is ready, and the commentator along with the sound system is ready. Here comes the first ball. Here comes the first ball. Unni starts off lovely bowling. Well, he has impressed one and all. What an ecstatic bowling performance. Outstanding he has been in this entire competition. I was mentioning about in the toss, and it was accepted by Namdev that this wicket is tailor-made for fast bowlers. And this man has done it. He has represented Goa under 23. He is in the prime time of his form. Just missed his run-up. Just in a prime form. I've seen him bowling with heart, bowling with pace, bowling with sprint, bowling with agility, and he's bringing little bit of spark in this team right from the word go. That is what Unni Krishnan is doing. Very excited to see the fast bowler thriving hard. That's whacked away. What a shot. Punaji Kalangutkar. That goes from the light into the dark. Big. Commentary box. What a fabulous shot. This is going to be a great battle. Just back of lane, slightly outside, trying to play that uppercut shot. A little bit more extra pace, and I think a little bit more bounce as well. Extra is required, extra effort, extra agility, extra sprint, extra class, and extra timing. All is important when you're playing the finals. This time left it all alone, slightly more wide, purposely and intentionally trying to bowl outside the line. Punaji Kalangutkar, well, he is one of the legends of tennis ball cricket. I've said it time and time again during the commentary box. He has a lot many fan following in Goa, and there are so many coming here live to witness him. This is another one. There's a man down there. Will it be taken? No. The ball is going to be re-bowled here because it is hit directly on that pole. Anything that hits directly on the pole is going to be a re-ball. The ball has to be bowled again, as was told well in advance before the start of this tournament. It's a 33 kV line that is going overhead here, right on top of the field. So he's got to re-ball. He's ready for the next one. This time trying to bowl a Yorker length delivery. Going for the drive. There's a fielder in the mid-off region. Stops the ball and sends it back. There is a string in the stride whenever Unni Krishnan is bowling. What a pacey performance that was in the semi-finals. Not allowing even Samarth Gawas to touch the ball to the bat and bowled 4 or 5 dot balls. Then Samarth went for a big shot and got him a 6. And good dive, but the ball pierces the infield and goes run down towards the boundary line for 4 runs. You just have to find the spaces, and open spaces are a lot when the talent backs you. Already 11 runs on the board, and this is a decent start. They were thinking about getting somewhere around 75 to 80, and if you're thinking that, you need to have a decent start in the power play overs. Well, I certainly feel here the pace is a little less compared to what I saw in the semi-finals. Semi-final, he was fiery. This time, just wide off the long on.
The fielder in the cow corner region stops the ball, sends it back, and that is the end of over number 1. Only trying to pick up wicket, but I think Punaji Kalangudkar handled him very well in that first over. It's 12 without loss at the end of first over. Datta Classes Asnora. So now one more inclusion. The Titan and the star of Kankona Titan superstar Vinay Satarkar has been included as an outstation player in this team. Well, they have already got Unni Krishnan, they've got Surya, and one more fast bowler in their ranks because this wicket is very suitable for the fast bowlers like Vinay Satarkar. Inside edge, very nice delivery here, pacey delivery, just back of length. The Kankona Express coming here in Uzgaon has certainly shown his pace, just matching skills to skill here with all the paces, especially Unni. Because Unni has played more matches in the league stages and they went into the semi-final. Now 2 Australian players allowed for these 2 finalist teams. Once again, inside edge, Punaji Kalangurkar trying that shot down the ground, trying to lift the ball, the little bit of extra pace here from Vinay Satarkar. Kankona Express, as he's called, has been stunning in last couple of seasons, not only with the ball but also with the bat. Another shot here, trying to lift the ball, is just going to be a single. Very good coverage of the ground by the fielder from cow corner region towards the wide long on. So at the moment 3 balls have been bowled, dot and a single is the story of this over so far. 13 on the board. And the first time we see Sahil Vaingankar on strike, the man from Autotech Penji. Penji Municipality, and he's coming as an outstation player, and he's a super talented, skillful player and a great all-rounder rising up here in Goa. Oh, what a whack! What a whack this is! Sahil Vaingankar just blazing it over the cow corner region. Fantabulous 6 runs. Right music for the night time. 19 runs on the board. Sahil. This time slightly wide outside the line, but well inside the guideline. This is a very good line, very good channel. After the 6 is going to be hit. A bowler is definitely going to be hit for 6, and that's not you are rated. How you are rated is how you make a comeback. Vinesh has shown it in leather ball cricket. Vinesh has shown it many times for Kankona Titans, and Vinesh has to show it here when he has been welcomed as an outstation player for Sai Ganesh Royals of Vasco. There's in the air, there's a man down there, and that goes down towards the left hand side. Another good shot here, lofted shot.
has not been given the second over. On the trot is Satish Yadav. So Satish will be bowling the third over. Decent start here from both top-rated players in Goa. Poonaji going for the reverse one. He does play it well, but he's better off when he's playing the lofted shot, the extra cover drives, the lofted square drive as well, and sometimes that shot towards the square leg when he picks it up. And a more correct player play and a miss here the reverse way. Satish Yadav has been not less than effective, very effective. Another play and a miss here. You feel here from the square that the ball was there to be hit. It depends upon the line, it depends upon the length, the swing of the batter. Couple of dot balls here that is definitely going to boost up the confidence of Satish Yadav. We are going to witness a spectacular finals. Whenever there are two semi-finals one-sided, the final is always a close one. In the air, this might be a chance, a big chance. Who is going to come? Oh, he has dropped it. He has dropped Poonaji Kalangudkar. Who is it? Vinod Wilson. Coming all the way almost 25 meters, hard in, racing in. Looked like he was almost into the position, but sometimes coming from the hide, from the dark into the light, it's always difficult to sight the ball. And that is what happened to Vinod. A chance definitely gone down, and it's of Poonaji Kalangudkar. The first single has been taken in this over, moves the score to 24. Another whack they tried, missed the elevation. A good over. The good over this is from Satish Yadav. After getting a decent start, they required to make a comeback. Although not a single wicket has been lost, but those dot balls, the first two dot balls and two singles, making just 2 runs have been coming of the first 4 balls of the third over. This time he gets hold of it into the crowd. मारता कंटिन्यूअस. चला महेश नाईक दिता 2000 रुपयाचे बक्षीस. ओव्हर टू यू सर हरीश कांगुळकर. यस, लोक उमेदीचेर आसा. आज इंडिया जैतिवंत जाल्ली आसा, चॅम्पियन्स. आणि हांगाय बी पळोवया कोण चॅम्पियन जाता. आमदार चषक 2025 जबरदस्त फायनल्स. Sam just place it back to the bowler. That 6 has made this over a decent one. 8 runs coming off that over. Over number 3 has concluded is 31 without loss. Both the openers Poonaji Kalangudkar and Sahil Waingankar are playing very well at the moment. 2 sixes and a boundary in the innings for Poonaji, and a 6 and a boundary in the innings so far for Sahil Waingankar is 31 without loss. सो आणि पैशाची खैरात जर 4 सिक्सरी कंटिन्यू मारता जाल्यार 9999 रुपया दिता शर्मा सांगोडकर. तर ज्या तरेन प्रायजां हांगा अनाउन्स जाता, जबरदस्त प्रायजां, आणि ते दाखयता की मोग उजगांवकाराचो क्रिकेटी बद्दल. आणि सदांच उजगांव धारबांदोड्या वाठारांत जर केन्नाय टुर्नामेंट जाता जाल्यार लोक उमेदीन व्हडा संख्येन येतात. आणि हांगा ज्या तरेन खैरात, ज्या तरेन हांगा प्रायजां वितरीत जातात, सगळ्यांची उमेद वाडयता. Oh, what a short ball, back of length, too much of pace, too hot to handle. Vinesh Sadarkar at the moment. Everyone likes speedsters. Well, we missed Jasprit Bumrah, but somehow Shami handled it very well without having missed Bumrah. Oh, lovely bowling. What an Yorker. Absolute jaffer. A toe breaker. Toe breaker here from Vinesh Sadarkar. This is absolutely fantastic. Whenever the fast bowler is storming in, hitting it hard, back of length first, then a wonderful Yorker. It always entertaining stuff. Another pull shot, not timing the ball, miscuing it towards the deep fine leg region. Surya throwing the ball back in, but a wonderful running with the wickets. See this cricket.
This is the exact cricket that everyone loves. Not only about the sixes, not only about the boundaries. The fast bowler is coming hard, bowling a bang short ball, almost close to the chest height. He goes for the pull shot, miscues it, but he understands that every run matters. Running hard quickly for a couple. Wonderful cricket here at the moment. This time goes downtown, and goes long. Straight over the head, bisecting, and a fabulous. And was that an age? Was that an age? I don't know, yes. Was it? Yes. That was off the bat. That was a golden chance. I maybe saw the reaction of Syed Badi. The reaction says that there was an age. And Sahil himself conveyed the batter saying that yes, it was of the bat. Wonderful spirit of the game showed by Sahil Vaingankar here. This is the cricket that we love. This is how the spirit of the game should continue. Down the ground, just going to get a single. But a great game we are witnessing at the moment. All the shots are being matched, skill to skill. The bowlers are also coming hard at the bowlers. Another good over. Fast bowling at his best, but still that wicket is eluding them. Not a single wicket for Vinesh Satarkar. No wicket at the moment for Unni Krishnan, and no wicket for Satish Yadav as well, and no wicket for the entire team. They are still searching to break this opening partnership. They are still searching to break this ice, but this ice is very strong at the moment from Datta Classes Asnora. Meanwhile, I'll see off my time from the commentary box. This match is poised in an interesting position, and further 4 overs is going to be Wasim, and it's a thank you from my bottom of my heart for Annu as well as all the organizers, Saish as well, for giving me the opportunity here once again at Usgaon. And it is a great time here, great night and great game, great finals, and thank you from my side. सो पहिल्या बॉलाक विकेट जर काडटा जाल्यार 1000 रुपया आणि पहिल्या बॉलाक सिक्सर मारता जाल्यार 1000 रुपया डिक्लेअर करता रुपेश फडते. Thank you, Harish sir. There is a prize for Asnora team. If any player hits 3 ball 3 sixes from Asnora side, then there will be prize of 1,000 rupees from Lokesh and Parish each. बढ़ते मैच की तरफ खेल 4 ओवर का समाप्त. 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 40 रन स्कोरबोर्ड पर, और अपना पहला टीम का 5वां ओवर करने के लिए अगले गेंदबाज सूर्या गांवकर एक आइकॉन खिलाड़ी के तौर पे खेल रहे साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम के लिए. फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद आते आते डॉट गेंद निकली. साहिल वांगेनकर सामना करेंगे. अल्टी पल्टी का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कदमों से जाके टकराई गेंद. करीबी मामला हो सकता था, लेकिन एक और डॉट गेंद निकली सूर्या गांवकर की. बेहतरीन गेंदबाजी पिछले मुकाबले में भी की थी, और इस मुकाबले में भी, इस अंतिम मुकाबले में इसी तरीके से गेंदबाजी करनी जरूरी. इस बार बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर को चकमा देती हुई गेंद निकल गई. 1 ड्रॉप सीमा रेखा पर. 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ. आणि पुणक्या जर सिक्सर मारता जाल्यार सुमित नायक दिता 2000 रुपयाचे बक्षीस. सो बक्षिसांची पैशाची खैरात तुमकां लागा तो आमकां उमेद. ओवर टू यू वसीम खरगीज, जिसके करते हैं लड़कियां मिस. थैंक यू अजय सर. लड़कियों का नाम सुनते ही हमारे कमेंट बॉक्स में स्वागत है. नितिन यादव ऑल द वे फ्रॉम आसाम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत.
थोड़ी सी बातचीत जरूर कर रहे हैं अंपायर से, लगता है कुछ स्कोर डबल 4 स्कोर बोर्ड पर 44 रन बन चुके हैं। काफी रोमांचक ये मुकाबला, जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे इस मुकाबले की, वही तरीके का ये मुकाबला फिलहाल फाइनल का मुकाबला, अंतिम मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला दत्ता क्लासेस असनोड़ा बनाम साई गणेश रॉयल्स वास्को के खिलाफ। सूर्या गांवकर फिलहाल एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अब तक एक चौका जरूर लगाया पिछली गेंद पे। फिर से एक बार, इस बार देखिए बेहतरीन इस गेंद को पड़ा था, केवल दिशा दी इस गेंद को भेजा फाइनल एक बाउंड्री पर। रुपया रुपेश भाईंचे बक्षीस जाहीर केल्ले आसा त्या बॅटराक गेल्ले आसा। फिर से एक बार सूर्या तैयार, सूर्या की अगली गेंद तेज करारी है गेंद, पिछली गेंद थोड़ी सी धीमी रखी थी, उस गेंद को पड़ा था साहिल वांगनकर ने, उसी के चलते अगली गेंद जो है तेज करार गेंद बिल्कुल बीट किया वहां पर बल्लेबाज को। स्कोर 48 रन, स्कोरबोर्ड पर 48 रन जुड़ चुके हैं। अड़तालीस रन कहीं ना कहीं एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दत्ता क्लासेस असनोड़ा की टीम रोकना होगा साई गणेश रॉयल्स के गेंदबाजों को। इनको अभी भी पुनाजी कलंगुटकर और साहिल वांगड़कर मैदान पर। इस बार बेहतरीन शॉट, गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर झटका दिया है। करता सर हरीश काकोडकर, हे काय कारणाक लागून चड वेळ जाल्ल्या कारणान आनीक कार्यक्रम आसा ते आमच्या कडल्यान हांगा विदा घेता, रजा घेता। हांव मागता सरपंच श्री रामनाथ डांगी सर हांकां की तेंच्यांनी हरीश काकोडकर सर हांचो सन्मान करचो, आनी हरीश बाब तुमकां विनंती आसा हो सन्मान स्वीकार करचो। सो ताळयो मातश्यो मारी आमच्या ऑफिशियल कॉमेंटेटर सर हरीश काकोडकर। हरीश बाब, हे प्रेम तुमी हांगच्यान घेवन काकोड्या वयता, कुडचड्यार वयता, सो ह्यान फुडें हे प्रेम वृद्धींगत जावचें आनी तुमचें सहकार्य परत आमकां मेळचें। सो ओवर टू यू वसीम खरगीज, जिसको करते हैं लड़कियां मिस। थैंक यू अजय सर। बढ़ते हैं मैच की तरफ। उन्नी कृष्णन एक बेहतरीन गेंदबाज अपनी टीम के लिए फिलहाल अपना दूसरा ओवर करते हुए अपनी बॉलिंग मार्ग पर एक लंबे रनअप के साथ सामने मैन इन फॉर्म पुनाजी कलंगुटकर और उनका साथ देने के लिए हर्षद बातोड़कर, एक आइकॉन खिलाड़ी केन के नाम से जाने जाते हैं बल्लेबाज, फिलहाल पुनाजी का साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। हर्षद की पहली गेंद, उन्नी कृष्णन का स्वागत किया इस गेंद के साथ, चौका। के साथ स्कोर 52 रन 50 रन पूरे करते हुए दत्ता क्लासेस असनोड़ा की टीम 52 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। उन्नी कृष्णन फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्ग पर। ओ इस बार गेंद खड़ी हो गई, सूर्या गांवकर गेंद के पीछे भाग जरूर रहे, देखना होगा क्या इस गेंद को रोकेंगे जी। इस बार कामयाब नहीं होंगे, गोली के रफ्तार से गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस नाम के चर्चे इस पूरे गोवा राज्य में, वो पुनाजी कलंगुटकर फिलहाल। इस बार देखिए बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद निकल गई शॉर्ट थर्डमैन द्वारा।
3 गेंदों पर 3 चौके और स्कोर पहुंचा 60 रनों पर। उन्नी कृष्णन जिन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी की इस प्रतियोगिता में, यहां पर थोड़े महंगे साबित होते हुए बेस्ट वर्सेस बेस्ट का सामना यहां पर। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आड़े बल्ले के साथ, काउ कॉर्नर से फील्डर तेजी के साथ गेंद पे आए, गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे पुणाजी कलंगुटकर और स्ट्राइक दिया है। फिलहाल एक आइकॉन खिलाड़ी हर्षद मातोडकर उर्फ केन सामना करेंगे उन्नी कृष्ण की अगली गेंद का। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजी के तो चर्चे इनके हर पूरे गोवा राज्य में प्रसिद्ध है। फिलहाल बल्लेबाजी की वही जरूरत रहेगी असनोड़ा की टीम को। थोड़े से रनअप में चूके बिल्कुल सोच रहे किस प्रकार से गेंदबाजी की जाए इस बल्लेबाज को। फिर से एक बार उन्नी कृष्णन तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर, सामने हर्षद मातोडकर। ओ इस बार धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी थी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की ओर आई है गेंद, सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में। बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक डॉट गेंद निकलते हुए काफी देर बाद मैदान पर। बिल्कुल समय ले रहे हैं उन्नी कृष्णन और क्यों ना लेंगे ये बहुत ही कड़ा मुकाबला, फाइनल का ये मुकाबला। हर एक गेंद पर सोच समझकर गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को। इस बार पटकी हुई गेंद अपने फॉलो थ्रू में खुद इस गेंद को फील्ड करेंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 61 रन, 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार देखिए उड़ाया, बहुत देर उड़ाया, बल्ले के बीचों बीच गेंद निकल गई। देखिए सूर्या की अगर गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो पिछला ओवर काफी इकोनॉमिकल ओवर रहा था, एक विकेट चटकाया था साहिल वांगेनकर के रूप में, लेकिन इस ओवर में पहली गेंद पर छक्के के साथ स्वागत जरूर किया है पुणाजी कलंगुटकर ने, जिस कारनामे के लिए, जिस बल्लेबाजी के लिए पूरे गोवा में जाने चाहते हैं ये पुणाजी कलंगुटकर, फिलहाल वही करते हुए अपनी टीम दत्ता क्लासेस अस्तोड़ा के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद, बल्ले का किनारा लेकर गेंद निकली शॉर्ट थर्डमैन के हाथों में, उन्नी कृष्णन थे फील्डर, वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक डॉट गेंद निकलते हुए बिल्कुल कमबैक किया है वहां पर सूर्या गांवकर ने। पिछली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा था, छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद एक डॉट गेंद के साथ कमबैक करते हुए सूर्या गांवकर फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। ओ इस बार देखिए ब्लॉक होल में ये गेंद, ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, यॉर्कर लेंथ की ये गेंद, कुछ पढ़ नहीं पाए पुणाजी जैसे बल्लेबाज को खामोश रखा इस गेंद पर। एक और डॉट गेंद निकलते हुए मैदान, वही 67 रन स्कोरबोर्ड पर। इन बिटवीन फुडल्या दोन बॉलांक जर 2 सिक्सरी मारता पुणक्या जाल्यार अभित चव्हाण दिता 2000 रुपयाचे बक्षीस। ओवर टू यू वसीम। खिलाड़ियों के लिए काफी यहाँ पर प्राइजेस है और पुणाजी कारनामा कर सकते हैं। सूर्या अपने अग्र गेंद लेकर
फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, क्या खूबसूरत कमबैक। पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद 3 बिंदी गेंदें, 3 डॉट गेंदें सूर्या गांवकर की। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल जिस काम के लिए लाए गए थे आइकॉन के रूप में इस टीम के अंदर, वो कारनामा कर दिखा रहे सूर्या गांवकर। पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी में वो फिनिश, वो शॉट, बिल्कुल नो लुक शॉट के साथ मैच को समाप्त किया था, लेकिन इस बार गेंदबाजी में अपना करिश्मा दिखाते हुए फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार आगे निकले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग जरूर कर रहे हर्षद मातोड़कर, लेकिन बिल्कुल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन, 68 रन स्कोरबोर्ड पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या होगा इस आखिरी गेंद पर, फिलहाल सामना करेंगे हर्षद मातोड़कर। ओ फुल टच गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा, नो बॉल करार दिया गया। आपने फॉलो थ्रू में कैच जरूर पकड़ा, लेकिन एक जीवन दान जरूर मिलेगा हर्षद मातोड़कर को। अबाउ वेस्ट बीमर ये गेंद, बिल्कुल नो बॉल का इशारा किया है अंपायर ने। तेज करार ये गेंद थी, बल्ले से टकराई ये गेंद, बड़ा शॉट तो नहीं लगा, लेकिन 1 रन से स्ट्राइक पर। अब मैन इन फॉर्म पुड़ाजी कलंगुटकर सामना करेंगे सूर्या की। फ्री हिट की गेंद का मौका है पुड़ाजी के पास बड़ा शॉट लगाने का। फ्री हिट की गेंद लेकर सूर्या क्या करेंगे इस गेंद पर। अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया। अगर डायरेक्ट लगती इस खंबे पर गेंद तो शायद डेड बॉल थी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद लगा तो कोई डेड बॉल नहीं, केवल 1 रन छोड़ेगा। और इसी के साथ खेल 7 ओवर का समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 71 रन, 71 रन स्कोर बोर्ड पर। कि कप्तान ने कहा था कि 70-80 तक स्कोर ले जाना चाहेंगे, और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करी। पहले साहिल ने, उसके बाद पुनाजी ने भी बाहर संभाला। सो परत एकदा प्राइज जिल्ह्याचा 2 बॉलांक 2 सिक्सरी झाल्या, 2000 रुपया अभि चव्हाण। ओ पहली गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, पुनाजी कलंगुटकर बैक टू पवेलियन। एक और झटका लगता हुआ दत्ता क्लासेस अस्तोड़ा की टीम को। के साथ स्वागत करेंगे पुनाजी का। डगआउट में 40 रन का योगदान दिया अपनी टीम को, एक बेहतरीन पारी खेली और पवेलियन की तरफ वापस लौटे। और उनकी जगह लेने के लिए अगले बल्लेबाज अनिकेत, बाएं हाथ के बल्लेबाज, पिछले मैच में एक छक्का जरूर जड़ा था इस खिलाड़ी ने। फिलहाल सामना करेंगे यासीन की अगली गेंद का। आखिरी 5 गेंदों की इनिंग बाकी। यासीन की अगली गेंद, वहां पर ड्राइव किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर तैनात, 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग जरूर है, लेकिन बिल्कुल मना किया वहां पर हर्षद मातोड़कर। फिर से एक बार यासीन चालू, यासीन सिंगरगुट्टी अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार है और इस बार उड़ाया, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह जाएंगे। गेंद निकल गई वन रफ सीमा। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 76 रन।
76 रन स्कोरबोर्ड पर, एक बड़ा टोटल। इस बार धीमी की गति की गेंद, इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन। काला गया और स्कोर को पहुंचा 82 रनों पर, 82 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। दत्ता क्लासेस की ये टीम एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए, यासीन सिंगरगुट्टी फिलहाल बॉलिंग मार्क पर। इस बार अच्छी गेंद अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को पकड़ा, क्या बेहतरीन कैच, जितनी तारीफ की जाए इस कैच की उतनी कम है। यासीन सिंगरगुट्टी बिल्कुल फॉलो थ्रू में इस कैच को पकड़ते हुए एक बड़े विकेट को अंजाम देते हुए हर्षद माथोड़कर की पारी समाप्त। हर्षद माथोड़कर बैक टू पवेलियन। अनाउन्स जाता ह्या बॉलाक जर 6 मारता जाल्यार सुमित नायक दिता 1000 रुपया। इस इनिंग की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए रोहन साळगावकर एक जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी फिलहाल मैदान की तरफ बढ़ते हुए और सामना करेंगे यासीन सिंगरगुट्टी की अगली गेंद का। इस बार गेंद खड़ी हो गई मिड विकेट बाउंड्री से, फील्डर तेजी के साथ इस गेंद के नीचे पहुंचे और यहां पर कैच छूटा, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन एक ही रन मिलेगा, कैच जरूर छूटा था, 1 रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 83 रन स्कोरबोर्ड पर, कुल मिलाकर 84 रन बनाने होंगे साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए और इस चमचमाती ट्रॉफी को जीतने के लिए। डीजे लेता हूं और एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स का और पूरी कमेटी का, मुझे मौका देने के लिए, यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आमंत्रित करूंगा कमेंट्री बॉक्स में चेंज होता हुआ आवाज सुनेंगे एक बेहतरीन इंग्लिश कमेंटेटर श्याम कलंगुटकर की। इन बिटवीन श्याम चौथो कलंगुटकर अजून मेळोना, युअर प्राइज इज वेटिंग। सो पुनाजी कलंगुटकर, आप्पाली कलंगुटकर, श्याम कलंगुटकर आणि चौथो जर कलंगुटकर कोण आसा जाल्यार प्राइज असले, पण अजून मेरेन चौथो कलंगुटकर आमकां मेळोना। सो एकूच प्राइज उरला जे प्रेक्षकांक लागून आसा। सो बाबू म्हणटा दीपक कलंगुटकर, पूण ना, तो जवळ जवळ म्हाका दिसता पारशा वयचो पडटलो। सो एकूच प्राइज उरला जे प्रेक्षकांक लागून आसा। आणि इजी क्वेश्चन, पाच पांडव येयल्लो आसा एकटो भुरगो येयल्लो आसा महाभारतांतले 5 पांडव। ओके, आनी खंयतले सांगतलो? रामायणातले? ओके, महाभारतातले भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। बरं सावका सांग। भीम, ओके, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन। अरे वा, 3rd जनरेशनातलो भुरगो येता। खंय रावता? तिस्कार। नाव कितें? श्रेयश। फूल? श्रेयश विनोद गुरीकर। श्रेयश विनोद गुरीकर 3rd जनरेशनातलो भुरगो येता आणि फटाफट 5 पांडव सांगता। म्हाका दिसतालें की 5-6 जाण येतले, चुकतले, कोण तरी म्हणटलो लक्ष्मण आनी येते, पूण ताळयो जावन ह्या 3rd जनरेशनाच्या भुरग्याक
ताळयो मारया कारण फटाफट येता आणि नांवां सांगता. हांव सरपंचाक विनंती करता ह्या भुरग्याक तुमी प्रायज दिवचे, मातसो येवन प्रायज कलेक्ट करचे. हे लास्ट प्रायज असले प्रेक्षकाक लागूचे पूण थर्ड जनरेशनचो भुरगो येता फटाफट नांव सांगता 5 पांडव आणि प्रायज घेवन वयता. जर बाबू दत्तराज गांवस एक बरो सिंगर, दत्तराज जर तूं सॉंग म्हणू शकता जाल्यार लोकांचे म्हणटालो, जर तूं म्हणू शकता दत्तराज गांवस जाल्यार प्रेक्षकांक खूब बरें दिसतलें. एका टायमार तूं बरो गातालो. हांव अनंत वेरेकाराक सांगू शकना कारण तो बाथरूम सिंगर. आमचे नाग्या जो मेन लायनमॅन त्याच बरोबर ग्राउंडमॅन. नाग्या तुजी गरज ते ग्राउंडमॅनाक आसा. नाग्या खंय आसा थंयच्यान मातसो कॉमेंट्री बॉक्सान येवचो. गेले 2-3 दीस तुजो उदो जाता. नाग्या खंय बिळान आसा थंयच्यान येवचो. बळकोंडा आनी चिवा मातशे कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन येवचे. बळकोंडा आसा थंयच्यान मातसो कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन कॉन्टेक्ट करचो. हावजी थोडेच उरले. सो फायनल जाले की रोखडेच आमी जल्दी फाय काडटले आणि 6,000 रुपयाचे बक्षीस मेळटले. जर आमच्या कोण तुमच्या कडेन पावना जाल्यार तुमी आमच्या कडेन या कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन. हावजी हांगा थोडेशे उरल्या आणि 6,000 रुपयाचे जल्दी फाय. सो विकेट हॅट्रिकाक लागून हांगा प्रायज जाल्ले आसा जाहीर. लोकेश आनी परेश दिता 2,000 रुपया. ॲशली खंय आसा थंयच्याच कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन वचो. ॲशली सो फायनल जाले की रोखडेच आमी हावजीचो ड्रॉ काडटा आणि 6,000 रुपया 50 रुपयांक न्हू 100 4 थोडेच उरल्या. जर तुमच्या कडेन आमचे मेंबर पावना जाल्यार तुमी आमच्या कडेन या कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन हांगा हावजी दिवप चालू आसा. सो परत प्रायजार डिक्लेअर करता तांकां सांगता वगी तुमच्या पब्लिसिटीक लागून कितेंय डिक्लेअर करूं नाका. जे शक्य आसा तितकीच प्रायजां दिया. पहिल्या बॉलाक विकेट पडली जाल्यार अभित चव्हाण दिता 1,000 रुपया. मातशे पयशे मात हाडून दिया बेगीन. बेस्टेट डिक्लेअर करपाक लावू नाका. पयलीं डेपोजीट करा पयशे कारण हांगा
मातशें प्रश्न येयल्ले आसा खरेंच दितले काय ना सो पयशे पयलीं डेपॉझिट करा मागीर तुमची नांवां जाहीर करा सो उदरच्यान हांव सांगतालो पूण आतां प्रेक्षकां लोकां कडल्यानूच क्वेश्चन मार्क येयला तुमी पयले पयशे हाडून हांगा डेपॉझिट करा मागीर स्वताची पब्लिसिटी करा ओवर टू द गेम सो 20 मिनटां जातली आनी तेज्या उपरांत आमी हावजी हांगा पळय तुमकां तुमचे पब्लिसिटीक लागून आनी एक प्रायज येयल्लें आसा 6 बॉलांक 6 सिक्सरी मारता जाल्यार 51,101 रुपया दिता सरफराज शेख सो म्हाजो मोबायलूय बिजी उरतलो आनी एकटो हात दाखयता 6 बॉलांक 6 विकेटी काडटा जाल्यार 1,11,111 प्रायज मनीकूय चड दितलो सो प्लीज आपली पब्लिसिटी मातशी कमी करा So over to you game, over to the game. Yes, plays the call from umpire. Over to you, Jay Bhosle. Sorry, Sham Kalangutkar. Thank you, Ajay Bhai. 84 the target required to win this grand finale. Looks to be a stiff target, but they have sent left and right hand combination in the middle. Sher Bahadur Yadav along with Hasif Shingangutti. With the ball, it will be Sahil Maingankar. Here goes Sahil to Sher Bahadur Yadav. 84 in 8. That's gone through and very well fielded. Two runs taken. That's gone through and officials in this particular game Sadgiri Naik and Punya Palkar. Cut away straight to the field at point. What a fabulous innings that was from Punaji Kalangutkar. 40 runs in double quick time. Then Sahil Maingankar with 28. Harshad Mathondkar just adding some sparkling innings in the end with 11. Well, all the bowlers, they were taken to cleaners apart from Satish Yadav. Swing missed. Dot delivery. 8 overs requiring 84. Just about 10 runs an over. Will be definitely telling each other in the team, in the dugout as well. 10 runs, more than just 10 runs, not big enough. Why can't we get there? Swing again, missed again, looking for a quick single. Chance of run out. No, not quite. How did that miss? Leg by is the signal given by the umpire. It'll just be a single. Score moves to 3. $1,11,111 up for grabs with that big trophy. Full toss delivery missed. Previous game they were chasing 50. Now they are chasing 84. Under a bit of a pressure. I've got plenty of batting to come. Got the 2 overseas signing as well. And also got Sayyad Buddy, big man, to follow. Again, this time gone. Man was placed there and he has fallen in the trap. Straight to him. That's the first wicket down. It's 3.
What a fabulous last over. The first over set the tone early for the Datta classes Asnora. 3 runs and a wicket. That prize wicket of Yasin. Hasif, in fact, just trying to flick it across and straight into the hands of that short square leg fielder. Meanwhile, asking for the big man, and the big man arrives. He's at the non-striking end. Syed Badi. Nicely played, up and over. The fielder Vishant, and Sahil comes in. Will just be a single. Just I've talked about earlier how they can cut down the runs. Just about 10 runs an over. 80 for the target. Currently sit at 4. 4 for 1. Second over in progress. Let's that one go. Dot delivery. Rohan Salgaonkar, how beautifully he has bowled tonight. Has been brilliant with the ball. Full toss delivery down the ground. Down to Namdev Banavlikar. Will just be 1. So far no boundaries in this innings. First over, mandatory power play, 2 fielders. This one, again a power play, 3 fielders outside the 30-yard ring. 1 man at mid-wicket, long on, and man at deep extra cover on the fence. Swing, missed, dot delivery. Bowling a perfect line outside the off stump, corridor of uncertainty. No chance to freeze arms. Bowling it fast and straight. Again, good delivery. Right in the block hole, looking for a single but sent back. Excellent bowling so far. Pressure being mounted on the batting team. Good delivery, that's gone, given. Second wicket. So both the openers gone in the pavilion. For 2. And Hasif Zamadar is the new man in. These two need to get a partnership going. Sahil Vaingankar has again been given the responsibility of bowling his quota of 2 overs. He's into his second and team's third. Nicely played. Straight to the fielder at extra cover. Harshad Mathondkar down there. Will just be 1. Talking about India's performance in that Champions Trophy, winning every single bit of game. Of course, playing in Dubai at the same venue for the entire tournament. Winning in a grand fashion against New Zealand. Well, the host were Pakistan and the final was in Dubai.
swung and dot delivery. Fought for the rights of hosting the event for 3 months. Then again asked for permission to get the grants from ICC for 2 months and lasted for only 5 days in the tournament. Comedy of errors. Meanwhile, back live to this game. Nicely played down the ground, down to Namdev. Bit of fumble from him, but good recovery. Just a single. Chasing a target of 84. Currently find themselves at 7. That will be wide, away from the reach of the big man. Extras. Third over in progress. 8 for 2. All the responsibility on this man, Syed Badi. Can he deliver under pressure? Nicely played with soft hands. Just biding his time in the middle. Maybe trying to just get the feel of the wicket and also the conditions right now. Because we all know that how strong and how capable he is of getting boundaries, sixes at will. 4 to 5 sixes in an over, not a big deal for him. Once he gets set, you will see some firecrackers later on. That's up and taken, gone. Hasif Damadar departs, losing partners here. The Royal has joined by a Titan. Vinay Satarkar in the middle. These two premier all-rounders, premier batsmen of their respective sides as the overseas signing up against the overseas from Hasnora. Looking for a big hike. Gets off the mark with that single. Score moves on to 10. 74 more required to win. 10 for 3 after 3. The two big teams out of 38 teams, Datta Classics Asnora versus Sai Ganesh Royals Vasco. And after the finale, we'll be having the housey draw. Only a single winner if comes, it is 6,000 cash prize rupees. Coupons konak jay teni yon anga geuche at the commentary box, and our volunteers are going on around the ground. Just 50 rupees 2 coupons and 100 rupees 4 coupons. One of the winner will get 6,000 rupees cash after the finale. Here the players are also giving big awards, and the public and all the people who are around on this ground for Amda Chashak 2025 season 2 will get the 6,000 rupees cash prize and will be going from this ground happily.
Okay, 3 overs done and dusted. 10 for 3. Here's Harshad. That's big. And that's all the way for 6. Over mid. Harshad Matondkar was pretty economical in that last game. 2 overs, 3 runs and 3 wickets. And now has got himself up against Vinay Satarkar. He's a different class altogether. Reverse sweep, missed. Dot delivery. This reverse sweep, when you try it, looks very good when it comes out. When it doesn't, well, the teammates start complaining. This time he connects again and connects long enough for 6. Again looking for the big hit, and Punaji Kalangudkar takes an easy catch. Harshad Matondkar. Overseas signing gone, overseas signing arrives as far as the Sai Ganesh Royal Vasco are concerned. Surya Gaukar in the middle. Up against Harshad Matondkar. Just got rid of Vinay Satarkar. 22 for 4. Reeling at the moment. That's up in the air and gone again. 2 and 2. Both those is signing. Hat-trick delivery for Harshad Matondkar. And Yasin Shingangutti will face the music of this hat-trick delivery. No hat-trick in this tournament so far. No hat-trick in this season too. Apologies. Hunni just looking at me with some anger. He has got a hat-trick. Jokes apart, dot delivery to end the over after completion of 4 at the halfway stage.
Sai Ganesh Royals Vasco. 22 for the loss of 5. Round of Maharashtra. A popular commentator from Sindhudurga. Shri Jay Bhosle sir in the commentary box. धन्यवाद श्याम। 84 रनों का पीछा कर रहे 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ लगे 22 रन। गेंदबाजी में रोहन सालगांवकर, सामने सैयद बद्दी। अच्छी गेंद चॉप कर दिया, वहां पर खिलाड़ी वहां पर तैनात, कोई रन नहीं। टोटल मैं कहूंगा बहुत बड़ा बनाया है। और गेंदबाजी की बात की जाए तो दत्ता क्लासेस अस्तोरा की बहुत बढ़िया गेंदबाजी मैदान के अंदर देखने को मिली। थोड़ा सी आशाएं जगाई थी अविनेश सतरकर ने इस मैदान पर, लेकिन तीसरा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, बल्ले के निचले हिस्से से लगी, सिंगल जरूर निकलेगा। सिंगल से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़ा टोटल आपको पीछा करना है। सामने वाली टीम ने 83 रन बनाए निर्धारित 8 ओवर में, आपको 84 रन बनाने। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन पहले 3 ओवर में सिर्फ 10 रन यहाँ पर बना पाई और उसके बाद चौथे ओवर में थोड़ी सी भरपाई करने की कोशिश करी थी विनेश ने, लेकिन यहाँ पर कहना पड़ेगा सूर्या गांवकर ने थोड़ी सी जल्दबाजी करी है मैदान पर। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल का कवर ड्राइव यहाँ पर देखने को मिलेगा। मात्र सिंगल से टोटल आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन जीत और गेंदों के बीच का फासला वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। एक आध बड़ा और चाहिए सामने वाले साई गणेश रॉयल्स वास्को टीम को। जिस तरह से बल्लेबाजी पुनाजी कलंगुटकर ने करी थी, 40 रनों की धुआंधार पारी, आज के वो हाइपर नोवा में अंतिम मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे वो पुनाजी कलंगुटकर, वही परफॉर्मेंस इस मैदान पर उन्होंने दिखाया। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सवाल पूछती हुई रोहन सालगांवकर की। एक तिखी गेंदबाजी देखने को मिल रही है मैदान पर। ये वही टीम है जो हाइपरनोवा की प्रतियोगिता जीतकर आई है। 55,000 की वो प्रतियोगिता, नामदेव बाणावलीकर मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे थे उस प्रतियोगिता में। अच्छी गेंद यॉर्कर लेंग के सलमान कर दिया, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक सीधा खेल दिया, फॉलो थ्रू में कोई रन नहीं। यहाँ पर सवाल ये उपस्थित हो रहा है क्या ये वही पिच है जहां पर अस्तोरा टीम ने इतना बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है? यह गेंदबाजी बहुत बढ़िया यहाँ पर दिखाई देती हुई अस्तोरा टीम की मैदान पर। इस बार तेज डालने की कोशिश, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकली, वाइड का इशारा आता हुआ, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोर बोर्ड पर। अब यहां पर आपको गियर बदलना ही पड़ेगा क्योंकि अब रुकने का कोई सवाल नहीं है, आपको और रन बनाने पड़ेंगे। किसी एक गेंदबाज के पीछे आपको पड़ना ही पड़ेगा और रन बनाने की आवश्यकता अपनी टीम के लिए। लेकिन रोहन सालगांवकर बहुत बढ़िया गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद हाफ वाली बनाकर खेल दिया, फिर एक बार कवर की दिशा में वहां पर खिलाड़ी गेंद को जब तक फील्ड करते और एक रन खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ टोटल यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त। आखिरी गेंद पर सिंगल निकला, 26 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 ओवर का खेल समाप्त। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और जीतने के लिए और यहाँ पर 58 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले में। सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स 30 उसगांव की ओर से आयोजित आमदार चषक 2025 ये अंतिम रजनी और अंतिम मुकाबला इस मैदान पर। दर्शक सोच रहे थे जिस तरह से ये वास्को टीम ने परफॉर्मेंस पूरी श्रृंखला में करे है, यहाँ पर लड़ेगी मैदान पर, लेकिन 5 विकेट जल्दी निकले हैं। लेकिन अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है और इन 18 गेंदों में अभी भी आपको बनाने हैं और 58 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी में केन आपको नजर आते हुए अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से छठा ओवर लेकर, ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पुलर लेंग की गेंद, थोड़ी से फिंगर रोल कर दिए थी गेंद पर, गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, सीधा खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ये एक होशियार गेंदबाज, चतुर गेंदबाज है, जानते हैं सामने वाला बल्लेबाज कितना बड़ा है, उससे पाले में गेंद आ गई तो सीमा रेखा के बाहर ही चली जाएगी। अच्छी गेंद कलाई के सारे खेल दिया, सिंगल यहाँ पर जरूर निकलेगा।
सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 27 रन। ऐसा ही कुछ शॉट खेलने की कोशिश करी थी वहां पर आसिफ ने, लेकिन वहां पर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। कलाई के साथ सिंगल लेना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी लगा दिया था शॉट पर, सीधे उनके हाथ में निकली गेंद। ओ इस बार उठाकर खेला है, गेंद लगभग निकल रही है, लेकिन ये टकराई गेंद और दोबारा डालनी पड़ेगी। डेड बॉल का इशारा आता हुआ। निश्चित रूप से शॉट तगड़ा था, शायद बाहर जा सकती थी ये गेंद, लेकिन आने वाली गेंद पर देखना है क्या लिखा है। प्रयास अच्छा है बल्लेबाज का। यासीन है मैदान पर। यासीन को कल जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने करी थी मैदान पर, वो करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। मुकाबला, अंतिम मुकाबला, दर्शक काफी उत्सुक है, कांटे का मुकाबला हो, क्योंकि यहाँ पर 2 सेमीफाइनल के मुकाबले पूरी तरह से एक तरफा हो चुके थे। इस बार उठाकर खेला है, हवा में जरूर है, खिलाड़ी वहां पर आते और बहुत बढ़िया कैच वहां पर डीप पॉइंट कवर की दिशा में, और एक विकेट। वापस जाना पड़ रहा है यासीन को। 6ठे विकेट का पतन। कोई खिलाड़ी मैदान के ऊपर रुकने की कोशिश नहीं कर रहा, रुककर कोई फायदा ही नहीं है। 6ठे विकेट का पतन हो चुका है। टोटल स्कोरबोर्ड पर लगे सिर्फ 27 रन स्कोरबोर्ड पर। डालिए, आपको देख के स्कोरबोर्ड किस तरह से नजर आएगा। 0300 0113 ये टोटल अगर बात की जाए तो 00 के साथ शुरुआत, 00 के साथ समाप्त। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। उन्नी कृष्णन, इनमें भी क्षमता है। आज गेंदबाजी थोड़ी सी वास्को के गेंदबाजों ने खराब करी है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं कहूंगा बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी बेहतरीन करी है एस्टोडा टीम की मैदान पर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी केन की। क्यों मुझे आउट स्टेशन खिलाड़ी के रूप में बुलाया गया है? 100% एफर्ट देना हम जानते हैं। साहिल ने कारनामा कर दिखाया, और वही कारनामा हर्षद मातोंडकर मैदान पर कर रहे हैं। और इस साल गजब के फॉर्म में ये खिलाड़ी, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है बड़े बड़े प्रतियोगिता में। इस बार उठाकर खेला है, गेंद लगभग निकलते हुए सीमा रेखा पार देकर जाएगी। आधा डजन रन, 6 2-3 ओवर में लग जाते तो स्कोर ठीक ठाक हो जाता, लेकिन अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवरों का खेल बाकी रहेगा। 33 टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी यहाँ पर 51 रनों की और आवश्यकता। और फिर एक बार तू डाल मैं मार गेंद निकली। 39 पर। अब बचे 12 गेंदे, और 12 गेंदों में चाहिए 45 रन। 39 टोटल स्कोर बोर्ड पर, और 12 गेंदों का खेल बाकी है। 45 रन बनाने और मैच में रोमांच बरकरार है। वैसे तो शॉट लगेंगे। उन्नी कृष्णन ने थोड़ी सी आशाएं जगाई है, थोड़ी सी आशाएं पल्लवित करी है मैदान पर। देखना है सैयद बद्दी क्या करते हैं। सैयद बद्दी का कारनामा हमने कई बार देखा है मैदानों के ऊपर, और इस बार 12 गेंदों में चाहिए वो 45 रन, यानी कि ये 12 गेंदों में से उसमें से 8 बड़े शॉट की आवश्यकता। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, कद जितना बड़ा बल्लेबाजी उतनी बड़ी। देखना है क्या होगा। और गेंदबाजी के मोर्चे पर आज के दिन में जिनको मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया वो नामदेव बाणालीकर बतौर कप्तान के हैसियत से गेंदबाजी के मोर्चे पर आते हुए
बल्लेबाजों ने उनके काम कर दिया था। 40 रनों का योगदान पुनाजी कलंगुटकर का। साहिल वाइंगनकर ने बनाए 28 रन, हर्षद मातोंडकर ने बनाए 1 छक्के 1 चौके के साथ 11 रन। और इन दोनों ने तो बहुत ही बढ़िया कारनामा 100% योगदान दिया अपनी टीम के लिए। अब ये 12 गेंदों का खेल बाकी, 45 रनों की आवश्यकता है। सामना करेंगे सैयद बद्दी इस ओवर की पहली गेंद का। बहुत बढ़िया गेंद सीधी पैरों से टकराई, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ेगा। अंपायर का इशारा लेग बाइट्स का आता हुआ, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 40 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 44 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। उन्नी कृष्ण ने 2 छक्के लगाए हैं इससे पहले ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर। अब सामना कर रहे नामदेव वानावली की अगली गेंद का। ओ इस बार उड़ाया है, 3rd सिक्सर, छक्कों की हैट्रिक यहां पर उन्नी कृष्णन के। टोटल अब पहुंचा 46 रन पर, 38 रनों की और आवश्यकता। मैच में रोमांचकता पैदा हो चुके हैं इन 3 छक्कों के साथ। थोड़ा सा देरी हो गई है लेकिन कहना पड़ रहा है, देर आए दुरुस्त आए। देखने वाली बात, नामदेव फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, फिर एक बार उड़ाया, फिर एक बार गेंद तारामंडल को चेरते हुए 4th सिक्सर। स्टैंड भी पूरे होते हुए साई गणेश रॉयल्स वास्को टीम के टोटल पहुंचा 52 रन स्कोरबोर्ड पर। किस तरह से खलबली मचाई है, एक खिलाड़ी मैदान के अंदर लड़ रहा है सीना चौड़ा कर कर, सामने वाले गेंदबाजों के ऊपर हावी होकर उनका बल्ला बोल रहा है तू डाल डाल मैं मार मार। पिछली 4 गेंदों में इस मैदान के ऊपर ये नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। ये क्रिकेट का खुमार है, ये क्रिकेट का रोमांच है इस मैदान पर। ये अंतिम मुकाबला हो तो इस तरह से हो। मैच में जान फूंक दी है यहाँ पर उन्नी कृष्णन ने। शायद मन में कह रहे होंगे गेंदबाजी भी मैं ही करो और बल्लेबाजी भी मैं ही करो, तो बाकी खिलाड़ियों का काम क्या बचा है। ओ पटकी हुई गेंद, हवाई फायर, गेंद निकल रही है। ओ ये यहां पर देखने वाली बात जरूर है। ओ बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली है। थोड़ी सी ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई शॉट में। शायद ये शॉट बाहर चला जाता तो मैच में रोमांचक और पैदा हो जाता, लेकिन सेव कर दिया यहां पर। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा है 53 रन स्कोरबोर्ड पर। 31 रनों की आवश्यकता और गेंदें बची है 8 गेंदे 31 रन। ओ इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे के लिए रन लेने के लिए निकलना चाह रहे थे। अगर सैयद बद्दी यहां पर छक्का लगाते थे उनके लिए 500 रुपए का इनाम यहां पर घोषित हो चुका है। माइनस स्ट्राइकर्स के ओर से ये 500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इस छक्के की अहमियत ये होगी कि आखिरी ओवर में कितने रन बच पाएंगे। ये गेंद महत्वपूर्ण है नामदेव की दोनों टीमों के लिए। मैच जीवित हो चुका है।
ओ ये तेज डालने की कोशिश दोबारा डालनी पड़ेगी। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त रन खाते में लिखा जाएगा। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी है और जीतने के लिए और 30 रनों की है और आवश्यकता। 7 गेंदों का खेल बाकी और 30 रनों की जरूरत। खड़े हो चुके हैं सभी स्पेक्टर, सभी खिलाड़ी, सभी समर्थक। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर चढ़ी नहीं, मौका था, 1 रन जरूर निकलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे इस आखिरी गेंद पर सिंगल लेने के साथ। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए रन चाहिए 29 रन। 6 गेंदों का खेल बाकी, 29 रनों की आवश्यकता। ये अंतिम मुकाबला क्या रंग ला रहा है इस मैदान पर। एक तरफ है रेड जर्सी, एक तरफ है पिंक जर्सी। किसके हाथों में ये बड़ी ट्रॉफी और किस टीम को समाधान मानना पड़ेगा रनर्स के ट्रॉफी के ऊपर। आखिरी ओवर और 6 गेंदों में चाहिए 29 रन। सैयद बद्दी के लिए माइना स्ट्राइकर्स के ओर से अगर छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम यहां पर घोषित कर दिया गया है। उन्नी कृष्णन ने इस मैच में जगाया है। ऐसा मैच चल रहा था मानो मुर्दों का शरीर हो। जिस तरह से मैदान पर मानो रन बन नहीं रही थे, अकाल सा पड़ गया था, लेकिन उन्नी कृष्णन जैसे मैदान के अंदर चले गए, वो 4 छक्के काम कर गए हैं और मैच जीवित हो चुका है। अब दारोमदार है सैयद बद्दी पर और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज ओ बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर, लेकिन बाहर निकली, वाइड का इशारा अंपायर का। दोबारा डालना पड़ेगी ये गेंद। 1 रन और खाते में जुड़ा। 56 अब तक 56। अट्ठाईस रनों की और आवश्यकता 6 गेंदों में। और इस बार खड़ी हो गई गेंद, कैच की संभावना। सीध गेंद के नीचे सैयद बद्दी, बैक टू द पेविलियन। ओ यू टी टाटा गुड बाय, खत्म। मैदान पर दीपू और बंटी पाटिल, इनका आगमन हो चुका है। गाना अगर मेरे हाथ में डीजे होता तो मैं लगाता पाटिल आला पाटिल आला। केपे ब्रदर्स यहाँ पर, दीपू वेलकम। दीपू की स्माइल तो हमें देखनी थी, इसलिए कुछ बातें करी यहाँ पर। शंकर है नए बल्लेबाज, शंकर। ओ बहुत बढ़िया गेंद, यहाँ पर मिस कर गए, बल्लेबाज भीड़ हो गए, गेंद निकले 22 के रूप में सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए गेंद चौके के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 60 रन स्कोरबोर्ड पर। 24 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब गेंदें बची है 4 गेंदें 24 रन, 4 मैक्सिमम, 4 बड़े शॉट। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, डॉट निकली। अब यहां से वापसी का द्वार बंद हो चुका है। 3 गेंदों का खेल बाकी, 24 रनों की आवश्यकता। इन 3 गेंदों में छक्का अगर लगाते हैं बल्लेबाज तो माइनर स्ट्राइकर्स की ओर से 500 रुपए का इनाम। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी सीध की, यहाँ पर रनआउट के रूप में शंकर को वापिस जाना पड़ेगा जरूर। मैच के ऊपर पूरी तरह से पकड़ जमाई हुई है। अब जीत की कगार के ऊपर 2 कदम दूर है दत्ता क्लासेस अस्तोला की टीम। थोड़ा सा आशा जगा दी थी
उन्नी कृष्णन ने, लेकिन कहना पड़ रहा है बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते इस मैदान पर। 2 गेंदों का खेल बाकी है और 24 रन की आवश्यकता। औपचारिकता बाकी सिर्फ इस मुकाबले की। स्ट्राइक पर आ चुके हैं उन्नी कृष्णन। सिद्ध फिर एक बार निकलते हुए, ओ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी सिद्ध वेर ने करके लाजवाब गेंदबाजी करी है मैदान पर। अब मात्र आखिरी गेंद का खेल बाकी। लगभग इस सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स 30 उसगांव की ओर से आयोजित आमदार चषक 2025 के इस ट्रॉफी के ऊपर लगभग नाम लिखना शुरू हो चुका है और वो नाम है दत्ता क्लासेस असोरा। आखिरी गेंद और इसी के साथ इस मुकाबले को जीतते हुए और बहुत बढ़िया आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।